ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ رحم کیا، جا تو کمزور اور ہم طاقت والے ہیں، ہم نے تجھ پہ رحم کیا اور تیری مغفرت فرما دی۔ کہ ایک چوٹی پہ رحم کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے میری مغفرت کر دی۔ دیکھا وہاں کتنے بڑے کی پکڑ ہو گئی اور یہاں کتنی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بخشش ہو گئی۔ اسی لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کے جو ہے وہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی بلکہ چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر لگا کرتی ہے۔ اب آؤ کبیرہ گناہ کیا ہے، اس کی فہرست میں 7 ہے، ایک حدیث میں 7 ہے، ایک حدیث میں 70 ہے، اسی طریقے سے اور بھی ہے، بعض لوگوں نے 500 تک گنائے ہیں، لیکن جتنی اس میں وقت میں گنجائش ہے آئیے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 اکبر القبائر جو ہے، یعنی سب گناہوں میں جو بڑا گناہ ہے اس کو شرک کہا گیا ہے۔ پتا چلا شرک کبھی نہ کرنا، اور شرک کیا ہے اتنا اشارہ سمجھتے ہیں، واقعی ایک عنوان تفصیل طلب ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں، یعنی جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ اور علماء سے اب اس کی تفصیلات آپ پوچھ سکتے ہیں، حالانکہ کچھ لوگ شرک پر اتنے جری ہیں، شرک کا فتویٰ لگانے میں ہاتھ میں گنڈا پہنا تو کہا مشرک ہو گیا، قبر پر گیا تو کہا مشرک ہو گیا، اور یا رسول اللہ کہا تو کہا مشرک ہو گیا۔ خدا جانے شرک کی ان کے یہاں کیا تعریف ہے۔ ارے نادان، جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اس کو کرنے سے آدمی مشرک ہوتا ہے، تو قبر پہ جانا یہ کون سا شرک ہے؟ بلکہ قبر پہ جانا یہ تو قاطع شرک ہے، اس لیے کہ اللہ قبر سے پاک ہے، اور جس کی قبر مانی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، تبھی تو اس کی قبر ہے۔ میلاد منایا تو کہا شرک ہو گیا، ہم نے کہا میلاد تو قاطع شرک ہے، کیونکہ خدا تیرے لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تو جس کی میلاد منایا یہی تو منایا کہ اللہ اکبر یہ خدا نہیں ہے بندہ ہے، اللہ اکبر۔ لیکن حیرت ہے، لوگ سیرا باندھنے کو تک شرک لکھ رہے ہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے کیسے لکھنے والے ہیں، بس بات آئی منہ میں بول دیا۔ لیکن یاد رکھنا، اور یہ بھی ہمارے علماء کی بہت حکمت ہے، انہوں نے میلاد کو اتنا بیان کیا، اتنا بیان کیا، اتنا بیان کیا، میں نے سوچا اتنا میلاد بیان کرنے میں کیا حکمت۔ آج تو تھوڑا کم ہو گیا، آپ کے یہاں کیا نہیں پتا، ہمارے یہاں ختنہ ہو تو میلاد پڑھی جائے، میت ہو تو میلاد، تیجا ہو تو میلاد، 10ویں ہو تو میلاد، چیلم ہو تو میلاد، کوئی حج کو جائے تو میلاد، کوئی حج سے واپس آئے تو میلاد، شادی ہو تو میلاد، میلاد میلاد میلاد۔ میں نے سوچا اتنا میلاد کیوں بیان کیا جا رہا ہے، تو ہمارے علماء کی دانشمندی پہ مجھے رشک آیا، اس لیے کہ جس کے ہاتھوں سے چاند کے ٹکڑے لوگوں نے دیکھا، جس کے ہاتھوں سے سورج کو پلٹتے دیکھا، جس کو شجر بلاتے دیکھا، جس کے اشارے سے شجر جاتے دیکھا، جس کے اشارے سے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، جس کے اشارے سے جابر کے بچوں کے مردے کو زندہ ہوتے دیکھا، یعنی کہ ان کے بعد ان سے ایسی ایسی چیزیں دیکھی، تو کہیں کوئی جاہل ان کے بارے میں یہ نہ کہہ دے کہ جو سورج کو پلٹا لے وہ خدا ہے، جو چاند کے ٹکڑے کر لے وہ خدا ہے۔ تو علماء اہل سنت نے میلاد منایا، اور میلاد منا کر کے بتایا کہ خدا وہی ہے جس کی شان ہے لم یلد ولم یولد، جو میلاد سے پاک ہے وہ خدا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں میلاد منانا بھی شرک ہے، ایسے کبھی بیٹھ کر کے کوئی پوچھے تو صحیح کیا کہ شرک کی تعریف آپ لائے کہاں سے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ لیکن میری قوم کا بھی عجیب حال ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مولانا سب کے ساتھ چلو، سب کے ساتھ جا سکتے۔ میں کہا بالکل چلے جائیں، ذمہ داری تو آپ کی اپنی ہے، بس اتنا خیال رکھنا جب قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں شفاعت کے لینے جاؤ گے، اگر حضور نے پوچھ لیا جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ بس اتنا یاد رکھ کے جانا۔ آپ کہتے ہو یہ جمہوری ملک ہے، آپ جس کے ساتھ جانا چاہیں جائیں، آپ تو کسی کے بھی ساتھ جاتے ہیں، لیکن ہم آپ سے اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں ملک جمہوری ہے، مذہب میں جمہوریت نہیں ہے، مذہب پابندی چاہتا ہے۔ مذہب نے پابند کیا صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندوں تک کے محدود کے سب کے پیچھے جانے کا حکم نہیں ہے۔ جو لوگ رسول اللہ کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں، اگر آپ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں تو ذمہ دار آپ ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ کر کے گالی دیتے ہیں کہ انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، آخر میں تو پوچھتا ہوں ہندوستان میں دین کی تبلیغ ہوگی کیسے؟ اگر یہی عقیدے رکھ دیے جائیں تو دین کی تبلیغ ہوگی کیسے؟ مشرکین کہیں گے ہمارا فلاں فلاں تو وہ تھا جس نے ہمالیہ کو پہاڑ پہ اٹھا لیا، اور تمہارا نبی وہ جو بیٹی کی بخشش نہیں کرا سکتا، تو آپ کس چیز کی تبلیغ کرنے نکلے ہیں؟ لیکن یہ تو 1870
बेटी की बख्शिश नहीं करा सकते और लोगों को कहने का मौका देते कि हमारे फला ने हिमालय उठाया। किसने उठाया ये कहानी किससे आपको पता है, लेकिन मैं इतना कहता हूं अगर किसी के फला ने हिमालय उठाया है तो हम सुन्नियों से जब नबी की ताकत कोई पूछेगा तो हम कहते हैं अरे एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा है, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। और कहते हो नबी बेटी की बख्शिश नहीं करा सकते। हदीस पढ़ो, हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो कच्चा बच्चा माँ के पेट से गिर जाएगा वो कच्चा बच्चा भी अपने माँ बाप की शफाअत करेगा। तो जब कच्चा बच्चा शफाअत कर सकता है तो महबूब खुदा ही की तो ये शान है कि उनका रुख जिधर हो जाएगा उधर जन्नत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। मेरे इमाम इसीलिए तो कहते हैं शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह, अल्लाह अकबर सदके इंसनाम के कुर्बान इस इकराम के हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। और नफ्स ये क्या जो जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है ना तवा के सर पे इतना बोझ भारी वाह वाह, एक तरफ रोजे का नूर, एक समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह, और क्या मदीने से सबा आई के फूलों में है आज। देखो ये है इश्क, फिक्रे रजा इसीलिए पसंद है कि ये ईमान को जिला बख्शती है। क्या मदीने से सबा आई के फूलों में है आज, एक नई बू भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह हवा। और फिर अपने इश्क का इकरार आखिर में इन दो मिसरों में करते क्या करते हैं, तारे दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा। लोग कहते क्या रजा रजा करते, मैंने कहा 14वीं सदी में किसी ने ऐसी बोली बोली हो तो बताओ है। गालिब और इकबाल की शायरी जिसमें रश्क करे, मीर की शायरी जिसका मुंह तके, मलिहा जोश मली आबादी जिसकी शायरी पर रश्क में जोश में आ जाए वो मेरे इमाम की फिक्र रजा है। ये शायरी नहीं, ये सच्चा इश्क मुस्तफा। क्या कहते हैं, पारे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। सगाने कू कहते हैं हुजूर के दरवाजे के पे बैठे हुए कुत्ते, कुए यार के कुत्ते। लोग कहते हैं वहां कुत्ते दिखते ही नहीं। मैंने कहा वहां तुम्हें क्या नजर आएंगे, वहां भी तो उन कुत्तों को देखने के लिए अहले नजर की जरूरत है। हाँ हाँ, पारे दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कौन से इतनी जान प्यारी वाह वाह। तो शिर्क अकबरुल कबाइर नंबर 2, गुनाह कबीरा नंबर 2, नमाज का तर्क गुनाह कबीर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इस पर लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, बहुत गुफ्तगू की है इस पर, लेकिन सिर्फ इशारा दे रहा हूँ उन्वान की मुनासबत से। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। सहाबा कहते हैं जो नमाज पढ़ता था हम उसको मुसलमान समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते, और जो जमात से नहीं पढ़ता था उसको मुनाफिक समझा जाता था। अल्लाह अकबर। और आज नमाज कहाँ है? लोग तो ये भी कहते हैं नमाज की क्या जरूरत है। क्या ये कुछ लोग ऐसे भी आ गए, अरे तुम्हें नमाज की क्या जरूरत है, जो पहुंचे हुए हैं उनको नमाज की क्या जरूरत, जो नहीं पहुंचे उनको जरूरत है। हमने कहा हमने तो देखा कि इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त तक नमाज पढ़ी, क्या वो नहीं पहुंचे थे? रसूलुल्लाह ने आखिरी वक्त तक नमाज पढ़ी। हैरत की बात है। बड़ी माजरत के साथ हम भी पीर रखते हैं, पीर का अदब करते हैं, लेकिन मैं अपनी कौम से शिकायत ज़रूर करने का हक रखता हूँ कि हम कादरी बने, चिश्ती बने, नक्शबंदी बने, रफ़ाई बने, शाज़ली बने, दसूकी बने, तवक़ाती बने, मदारी बने, वारसी बने, सब बने, क्या हम मुसलमान भी बने? हम मुसलमान भी बने? आप कहेंगे क्या बात करते हैं आप। मैंने कहा अगर पीर तोहफा दे दे, टोपी का तोहफा, रुमाल का तोहफा, मामे का तोहफा, कितना संभाल के रखते हो, कफन में साथ ले जाएंगे मौलाना। मैंने कहा हमने भी कुछ तबरुकात रखे हैं, मुबारक हो, लेकिन आपसे पूछता हूँ पीर का दिए हुए तोहफे की इतनी कदर है, अल्लाह के दिए हुए तोहफे की क्या कदर कर रहे हैं? आप बताएं। ये तोहफा अल्लाह ने दिया और किसके हाथ से दिया? ये तोहफा अल्लाह ने दिया किसके हाथ से? कायनात का जो सबसे बड़ा पीर था उसके हाथ से भेजा तोहफा। है उनसे बड़ा कोई पीर? दाता अली हुजवेरी फरमाते हैं
रसूलुल्लाह जैसा कोई पीर नहीं है और अबू बकर सिद्दीक जैसा कोई मुरीद नहीं है। ऐसे पीर के हाथ से तोहफा, उसकी क्या कदर है। फजर में सोते पड़े हैं, जोहर का हाल क्या है, मगरिब का हाल क्या है, इशा का सब जान रहे हैं। यह भी गुनाह कबीरा है। इसका मतलब यह है अगर नमाज का दामन हाथ में नहीं, जन्नत भूल जाएं आप, बड़ी माजरत के साथ जुमले सख्त लगे माफ करना, जन्नत भूल जाएं, इसलिए कि नमाज छोड़कर ईमान पे खात्मा होने के लाले हैं। बल्कि हदीस पाक तो यहां तक कि फतावा रज़विया में इमाम अहले सुन्नत ने हदीस लिखी, तवज्जो करें क्या लिखी, लिखते हैं अगर कोई नमाजी हो, नमाज का पाबंद हो लेकिन रुकू सही नहीं करता, नमाज का पाबंद हो लेकिन रुकू सही नहीं करता जैसा करने का हुक्म है, तो डर है मरेगा तो काफिर होकर के मरेगा। जो अजान सुनकर अजान का जवाब नहीं देता, दुनिया की बात में मसरूफ रहता है, डर है मरेगा तो काफिर होके मरेगा। अरे नादान, जो अजान का जवाब न दे, जो रुकू सही ना करे, उसके कुफ्र पर खात्मे का अंदेशा है। तो जो लोग सिरे से नमाज पढ़ते ही नहीं, उनका ईमान पे खात्मा कैसे होगा, जरा इस पर भी तो गौर किया जाए। ये नहीं कहता कि हर बेनमाजी काफिर होके मरता, ये नहीं कह रहा हूं, मफ़हूम मुखालिफ ना मुराद लिया जाए, लेकिन इतना जरूर याद रखना, जिनके हाथों में नमाज का दामन नहीं है, डर है कि मरेगा तो कुफ्र पे मरेगा, खौफ है कि मरेगा तो कुफ्र पे मरेगा, इसलिए अपने हाल पे रहम करो। फिर फरमाया कबीरा गुनाहों में ये भी है झूठ। आज झूठ भी कसरत से बोला जाता है, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम तो टेक लगा के बैठे हुए थे जब ये बात कर रहे थे, लेकिन जब झूठ की बात आई तो हुजूर ने टेक छोड़ दिया और टेक छोड़ के फरमाया कि झूठ भी गुनाह कबीरा है। बल्कि पूछा गया क्या मुसलमान बदी कर सकता है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, अगर नफ्स वरगला दे, शैतान बहका दे तो कर सकता है। क्या मुसलमान फला गुनाह कर सकता है? कहा हाँ, वो भी कर सकता है। फिर पूछा क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि जो झूठ बोलता है ये मुनाफिक की सिफत है, मुनाफिक की। आज तो झूठ को कोई गुनाह भी नहीं समझते, बल्कि हैरत तो इस बात पर है, माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं झूठ बोलना। कोई बाहर खड़ा है, फला है घर में, कहा कह दो नहीं है, कहा कह दो नहीं है। मैं कहता हूं अपने बच्चों को झूठा हम बना रहे हैं, और कल यही बच्चा जब पलट करके हमें झूठ बोल के अपना फन दिखाता है, बोलता बड़ा झूठा है, बाप की फरमाबरदारी नहीं करता, झूठा किसने बनाया? और आपसे पूछता हूं, मखलूक की खुशी के लिए खालिक को नाराज करते हो? अगर आप कह दो कि नहीं मिलना चाहते, वो आपका बिगाड़ क्या लेगा? घर में बैठे हैं, अभी निकले नहीं है, पहुंचने का टाइम था, कहां पहुंचे? कहा निकल गया, बस रास्ते में हूं, हालांकि बैठा है घर में। अगर बोल दो कि घर में बैठा हूं, लेट हो गया यार नहीं निकल सकता, उसमें कौन सी गर्दन उतार लेनी? मखलूक को खुश करने के लिए खालिक को नाराज न करो। बल्कि आज जो बच्चे बिगड़ रहे ना, बच्चे माँ बाप की वजह से बिगड़ रहे। घर के अंदर का माहौल इतना गंदा कर रखा है कि हमारे बच्चों को गुनाह के लिए कहीं ट्रेनिंग लेने जाने की जरूरत नहीं है, वो माँ बाप ही से सारी गंदगी सीखते हैं। आजकल बड़ा मसला चल रहा है, बेटियां भाग रही हैं, बेटियां भाग रही। मैंने कहा किसने ट्रेनिंग दी बेटियों को भगाने की? कोई आया था? नेकियों की तरबियत देने के लिए तो उलमा मुबल्लिगीन आते हैं, गुनाहों की तरबियत देने कौन आता है? ये सब घर का माहौल है। आज कहते हैं बेटियां भाग रही, जिम्मेदार कौन है? माँ बाप। जब माँ अपनी बेटी को अपने बाजू में लेकर के सीरियल देखेगी और हीरो हीरोइन के भागने के मनाजिर मां दिखाएगी, तो बेटी ने करना क्या है? वक्त से पहले बच्चे बालिग हो रहे हैं, वो मनाजिर हमने अपने बच्चों को अपने बाजू में लेकर के देखे। फिल्मों ने, सीरियलों ने और गंदी फिल्मों ने बेड़ा गर्क किया है माशरे का। कल तक के बच्चियां शादी होने तक जो चीजें नहीं जानती थी, आज के हमारे बच्चे वो सारी चीजों को अबूर कर गए। अल्लाह माशाअल्लाह, ये सूरत हाल है। और अब तो इतनी भयानक सूरत है कि बच्चियां कोई गुर्बत का बहाना लेकर, कोई शादी न होने का बहाना लेकर, कोई जेवर और कोई मोबाइल और कोई पता नहीं क्या क्या चीजों का बहाना लेकर, अब तो मुसलमान अब किसी दूसरे के हाथ में भी हाथ दे करके बाज बच्चियां जा रही हैं। हालांकि लोग प्रोपेगेंडा ज्यादा कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।